Hello everyone, good evening and welcome to Government Private Job Alerts. So students, in this video we are going to discuss about the Wipro exam preparation. So we have strategized your exam, your sections, and on the basis of your sections we are going to prepare the Wipro exam preparation strategy. So we have decided to make three videos, or you can call it three parts or three sections of our video preparation, because we have very less time. So on that behalf we have planned that we will be making three videos, mean three preparation strategy videos. Along with we are having your three sections, mean today's video we are going to discuss about the important and the difficult part, that is your aptitude preparation, so that you could get more time in preparation. And after that we will be covering your verbal also and your reasoning part also. So if you have any doubt in the preparation strategy or anything, you can ask us, you can ask in the comment section. And along with that you can also join our telegram groups, that will be really helpful to you guys. Now students, I would request you, please watch the video till the end, because we have two announcements today to make. So first, the first announcement we will be making right now, that recently we have collaborated with a company. We will disclose it later when we will get complete details, your registration details and each and everything. Mean that is your non-technical in the sense your position will be somewhat of manager. So the salary will be a handsome salary you will be getting, and there is only the written exam. On the basis of that you will get selected. So stay connected with us. That is why we usually say to you that subscribe the channel and press bell icon, because when we will update, so within few days you are going to have your written exam, and for the same you have to be well prepared for the same getting. So now let us start our video. First of all, let me show you our preparation strategies. Mean if you wanted to prepare for any of the MNCs, so you can prepare from those videos. So let me first show you the preparation strategy videos and the playlist. So students, as you can see, we are on our channel. So you can see government private job alerts. This is our channel, and I request you, all of you, please subscribe our channel and press bell icon, so that we will be more motivated and we will grow motivated as such to help you guys. So you can see now this is our channel playlist. First of all, you can see Infosys exam preparation. So on the last day that I am talking about, your 19th of Feb and 18th of Feb, after your 12 a.m., we have uploaded 4 to 5 videos. You can see the count is of 28 at that time, and now it's 35. That means 7 to 8 videos we have uploaded just for you in a night getting. So you can see this is the off campus drive, means जो भी students prepare कर रहे हैं for your off campus drives or latest job recruitments for 2022 updates, they can also subscribe our channel to get your job updates on time. After that, you can see this is our TCS NQT 21 exam preparation and 22-23. Mean those who wanted to prepare for their aptitude, reasoning, English, those exams, so they can get it easily. So these are the playlist. I guess more than 70 to 80 videos are there, and a video, I guess it is of 40 to 50 minutes. Each video is of 40 to 50 minutes, and each question is being asked already in your Infosys TCS or other your MNC exams. So now let us move to the our in Wipro preparation. So now come to the question section. So we are going to start our session. So I want your comments in our comment section box, so that I mean how you like the session. आपको कैसा लगा, किस टाइप्स के your questions थे आपके, और आपका level of questions also. So students, I have already told you that we are in collaboration with a company. आपकी अच्छी job है. अगर आप for example आप आपका जो TCS है, Infosys है, मीन आप अगर जो आपके कोडिंग सेक्शंस हैं या आपके आईटी सेक्टर है उनमें नहीं जाना चाहते, बट यू वांटेड टू मेक कैरियर इन अ प्राइवेट सेक्टर, सो दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस. तो स्टे कनेक्टेड विद अस. जैसे ही हमें टोटल अपडेट्स मिलेंगी, सो डेफिनेटली विद इन अ 1 or 2 days वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस. So now you can see this is a little announcement. One more announcement for your Wipro exam preparation, that is will be conducted on 23rd of Feb. For that also we are having an announcement, so we will tell you later in the end of the video. So now you can see a shopkeeper offers a discount of 20%. तो shopkeeper 20% discount देता है where on the selling price. Okay. After that, on a special sale, he offers an 25% of coupon after the first discount. Mean क्या हो गया देखिए, फर्स्टली द शॉपकीपर हैज़ प्रोवाइडेड 20% डिस्काउंट. पहले 20% डिस्काउंट दिया, उसके बाद 25% डिस्काउंट और दे दिया
तो द आर्टिकल जो था, योर आर्टिकल एसपी, एसपी मीन्स योर सेलिंग प्राइस क्या था आपका, 3600 हो गया। तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द मार्क्ड प्राइस एंड योर कॉस्ट प्राइस। तो दीज आर द ऑप्शंस, ये आपको मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालने हैं इनमें। तो देखिए हाउ यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चन। सो लेट मी फर्स्टली अरेज द आंसर्स, आई नो यू विल नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। तो पॉज द वीडियो और क्वेश्चन को अपनी तरफ से सॉल्व करके देखिए आपको सॉल्व होता है नहीं होता, आई विल टेल यू। तो नाउ सी, आपका देखिए पहले शॉपकीपर ने डिस्काउंट ऑफर किया, दैट मीन्स आपको जो आपकी 100 रुपीज़ की कोई अमाउंट थी, जो आपका मार्क्ड प्राइस था, वो आपको 20% डिस्काउंट मीन्स आपको वो 80 रुपीज़ की मिल जाएगी। गेटिंग मीन आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट 80 रुपीज़ की मिल जाएगी, दैट मीन 80% की मिल जाएगी। पहले आप अगर आपकी 100 रुपीज़ की थी तो अब 80 रुपीज़ की मिल जाएगी, तो ये हो गया आपका 80%। एंड आफ्टर दैट ऑन अ स्पेशल सेल उन्होंने क्या किया कि 25% और डिस्काउंट दे दिया, दैट मीन्स इसके ऊपर 25% और डिस्काउंट दे दिया, दैट मीन्स 75। तो आपका जो टोटल अमाउंट था, आप लेट अस सपोज कीजिए कि जो आपका मार्क्ड प्राइस था वो आपका 100 था। तो आपको दो डिस्काउंट्स मिल चुके हैं। एक पे पहले क्या होगा, आपको 80% मिल रहा है, 80% एज सच कि 80 रुपीज़ की मिलेगी, फिर उन्होंने बोला कि वो 75 की भी मिल सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 80 × 75 × एक्स इज योर मार्क्ड प्राइस। तो ये कितना है आपका, दिस इज द सेलिंग प्राइस, कितना है आपका 36। दैट मीन्स अब आप एक चीज़ समझिए ऑन अ बेसिक नोड, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़े से लेंदी होने की वजह से इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, और क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते हैं, लीव कर देते हैं। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे क्या देखना था कि आपकी जो सेलिंग प्राइस थी वो 3600 थी, और ये 3600 कब हुई, जब आपने दो डिस्काउंट्स ऑलरेडी लगा दिए। इन दो डिस्काउंट्स को लगाने के बाद आपको 3600 की वो पर्टिकुलर अमाउंट प्राइस हुई है। तो देखिए अब आप यहाँ पे जीरो से जीरो एलिमिट कर सकते हो, और ये हो गया आपका 25 3, और ये हो गया आपका 25 4। गेटिंग। अब यहाँ पे देखिए ये कितना आपका, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 2, 4 to 8। अब देखिए ये हो गया आपका 3 × 2 6, और ये कितना हो गया आपका 6 6, तो ये कितना हो गया आपका 600 हो गया, ये 600 हो गया, और एक 10 आपका नीचे रिमेनिंग है डिनोमिनेटर में, सो दैट मीन्स, और ये जो आपका 10 है ये साइड चला जाएगा जीरो, तो ये हो गया आपकी 6000। तो देखिए आपका जो मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल वो कितना था आपका, था वो 6000, और आपका एसपी कितना था 3600। तो नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, यू कैन सी द नेक्स्ट स्टेप। कॉस्ट प्राइस निकालनी है आपको तब जबकि आपका जो प्रॉफिट है वो 80% हो जाएगा ऑन द होल डिस्काउंट। तो देखिए अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस भी वॉच की होंगी कंटिन्यूसली, तो उनमें हमने आपको बताया हुआ है कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, CP, C = SP इंटू 100/100, CP = SP × 100/100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आपका 80%, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 80 यूज़ करोगे, तो ये कितना हो गया आपका 80%। ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है, CP = SP × 100/100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस प्रॉफिट। अगर लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस करोगे आप, अगर प्रॉफिट होता है तो 100 प्लस प्रॉफिट करोगे। तो यहाँ पे देखिए 180, ये कितना हो गया आपका 180 हो गया। डायरेक्टली देखिए विद इन अ सेकंड्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था, और आई गेस काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा। तो देखिए ये हो गया आपका जीरो से जीरो, ये हो गया आपका 10/18। यहाँ पे देखिए एसपी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, एसपी उन्होंने गिवन था, एसपी आपका 3600, तो यहाँ पे एस की जगह पे आप 3600 यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये हो गया आपका 3600, टू जीरोज़। तो देखिए अब ये क्या आपका 18 है, इसलिए हमने 18 को एलिमिनेट नहीं किया था, तो 18 × 36, और ये डबल ज़ीरो आप यहाँ पे यूज़ करोगे, और एक 10 आपका यहाँ पे रिमेनिंग है, तो एक ज़ीरो आप यहाँ से यूज़ करोगे इसका, तो ये हो गया आपका 2000। तो देखिए कौन सा आंसर है आपका 6000 एंड 2000। देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट को कैलकुलेट करके अगर आपका 6000 आपका आंसर आ गया है, तो आप डायरेक्टली भी यू कैन डायरेक्टली टेक योर आंसर एज थर्ड ऑप्शन, बट वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, दैट इज़ वाई वी हैव टू सॉल्व बोथ द पार्ट्स। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस भी पूछा जा सकता था, और सेलिंग प्राइस तो आपका गिवन है, मार्केट प्राइस भी पूछा जा सकता था, इसलिए वी हैव सॉल्व बोथ ऑफ द योर मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑल्सो। बट इफ़ यू सी इन द ऑप्शन, तो अगर आप 6000 भी कैलकुलेट कर लेते हो, तो देखिए 6000 और कहीं भी नहीं है, दैट मीन्स आप डायरेक्टली यू कैन टेक योर थर्ड ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं आपके काफ़ी बारी क्वेश्चंस आते हैं, ईजीएस्ट क्वेश्चंस हैं, और देखिए we are explaining these questions with tricks, we are not solving the complete answer, I know, क्योंकि ये थोड़ा सा, अब देखिए बिकॉज आपका लास्ट टाइम है, इस टाइम में अगर आप विद बेसिक्स जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, CP of 10 आर्टिकल, SP of 10 आर्टिकल, so that will really consume your time, and I guess you guys are not having your time getting, so that is why we are planning to have the shortest, not shortest tips and tricks for these questions, mean अगर आपको ऐसे questions मिलते हैं तो how you can
solve these questions. Getting? So now solve this question. So after that I'll solve. So now coming to the question, you can see 15 बैंड CP. So that means आपके जो 15 बैंड हैं CP के, वो क्या हैं आपके 15 बैंड CP इज आइडेंटिकल टू 18 बैंड SP. अब देखिए दिस इज अ कॉमन सेंस, आपके जो 15 बैंड है CP के वो 18 बैंड हैं आपके SP के. इसका मतलब आपने जो 15 आर्टिकल परचेज किए थे वो आपके 18 आर्टिकल के SP के इक्वल हैं. दैट मीन्स यहाँ पे आप कॉमन सेंस यूज़ करके ये बताइए कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आई वॉन्टेड टू नो फ्रॉम यू गाइज वेदर देर इज़ अ लॉस और अ प्रॉफिट. यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन है वो, लेट मी फर्स्टली इलेबोरेट इट मोर. यू कैन सी यहाँ पे एक पर्सन है जो कि अपने 15 आर्टिकल्स जो खरीद होती है, मीन 15 आर्टिकल फॉर एग्जांपल अगर आपका एक आर्टिकल 100 रुपये का है, 100 रुपीज़ कॉस्ट, तो 15 आर्टिकल्स हो गए 1500 के, लेकिन आप उसे बेच रहे हो 1800 के. गेटिंग? 1500 1800. अब बताइए अब आपका लॉस है या प्रॉफिट है? आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा. तो दैट मीन्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, आपका लॉस है, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे जो SP है वो 18 के इक्वल है. मीन्स 15 CP इज इक्वल्स टू आपका क्या है 18 ऑफ SP है. गेटिंग? तो अब देखिए यहाँ पे क्या आपका लॉस है, तो लॉस देखिए कितने का है, लॉस है आपका 3 का. अब देखिए जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो, वो आप डायरेक्टली निकालते हो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. तो अब देखिए आपका CP क्या होगा, ये तो हो गया आपका 3, CP आपका 15 नहीं होगा. ये बस ये छोटी सी ट्रिक है यहाँ पे इनका डिफरेंस लेके आपको, अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको ये वाली यूज़ करनी है, बिकॉज जो आपकी अर्निंग वाली थी वो 18 है ना कि 15 है. तो 3/18 इंटू 100 डायरेक्टली तब आप इसे सॉल्व करोगे. तो यहाँ पे देखिए इंटू 100 करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे 1/6 यूज़ कर लीजिए, ये हो गया आपका 1/6, और 1/6 डायरेक्टली आपका 16:2/3 होता है. तो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. गेटिंग? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखिए शॉर्ट टेस्ट ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं, आपको बस ये चीज़ें अभी मेमोराइज कर सकते हो, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन इनकी डिटेल में चाहिए तो हमने पर्टिकुलर जो आपके क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखी है. अगर आपको यू वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन तो यू कैन गो थ्रू दम. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो देखिए ए कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. सो देखिए दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर बोट एंड स्ट्रीम, एंड आई गेस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है. तो देखिए इसमें क्या है, आपकी डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम याट टेक्स 3.5 आवर्स. ओके देखिए 3.5 आवर्स वो डाउन स्ट्रीम लेते हैं, और द सेम यार्ड कवर्स द सेम डिस्टेंस वाइल गोइंग अपस्ट्रीम इन 7.1 आवर्स. ओके तो अपस्ट्रीम में वो 7.1 आवर लेते हैं और डाउन स्ट्रीम में वो 3.5 आवर्स लेते हैं. तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए डायरेक्टली क्या है आप यूज़ कर सकते हो. आपका यहाँ पे देखिए ये क्या है कि 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे यूज़ कर लो आप डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है आपकी स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितना है आपका 45, और टाइम कितना है, डायरेक्टली देखिए टाइम कितना आपका, टाइम है आपका 3.5. अब देखिए यहाँ पे जो 3.5 आपका टाइम है, इसे आप डायरेक्टली जब सॉल्व करोगे, बिकॉज देखिए एग्जाम में आपको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन होती है, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो. तो आप भी कैलकुलेटर से देखिए, हम भी एक बार ट्राई देखते हैं कैलकुलेटर से कितना आता है आपका. तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 45 डिवाइड बाई 3.5, आपका डायरेक्टली ये हो जाएगा 12.85. तो आप यहाँ पे 12.9 ले सकते हो अप्रॉक्स. तो ये हो गया आपका 12.9. आप डायरेक्टली इसे सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है. और देखिए अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका फिर, अपस्ट्रीम देखिए अपस्ट्रीम क्या है आपका 7.1 आवर्स. तो देखिए जो आपका डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस है, दैट मीन्स 45 किलोमीटर ही आपका सेम डिस्टेंस है. तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 45, और डिस्टेंस कितना आपका 7.1. तो ये हो गया आपका 7.1, और ये आप तब इसे 7.1 से डिवाइड करोगे, तो इसे डिवाइड करके देखिए कितना आता है आपका 45/7.1. तो यहाँ पे तब आप इसे 7.1 से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट इट 6.33. तो आप इसे अप्रोक्स करके 6.4 ले सकते हो. तो देखिए ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम, ये हो गया आपका अपस्ट्रीम. अब इस केसेस में अब देखिए अगर आपको स्पीड ऑफ याक निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए स्पीड तब आप याक की निकालेंगे, तो SP लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यू लुक ओवर देयर. ये हो गया स्पीड इक्वल्स टू स्पीड ऑफ याक इज D+S होगा आपका. वाई? क्योंकि जो आपकी स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ याक वट एवर जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो क्या होती है आपकी जो डाउन स्ट्रीम होती है और अपस्ट्रीम होती है. अगर यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट हम निकालते हैं, यहाँ पे मैं C लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ करंट दैट इज इक्वल्स टू ये क्या होता है आपका, ये होता है D-U. देखिए दो लॉजिक बता दिए हमने आपको यहाँ पे. दैट मीन्स आप यहाँ पे अगर आपको करंट पूछा होता तो यू शुड हैव डन D-U, बट देयर इट इज़ आस्क्ड अबाउट द स्पीड ऑफ बोट, और यू कैन कॉल इट अ स्पीड ऑफ याक. तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12.5 और 6.4. तो ऐड कर लीजिए डायरेक्टली. तो 9 4 13 हो गया, 3 1 कैरी हो गया आपका, 6 2 8 एंड 1 9 हो गया यहाँ पे, और एक आपका कैरी होगा. तो दैट मीन्स 19.3 आपका करेक्ट आंसर हो गया. ये स्पीड ऑफ याक हो गया इन किलोमीटर पर आवर. बिकॉज देखिए
यहाँ पे ये भी आपको किलोमीटर में था और ये आपका आर में था, तो वी शुड नॉट हैव कन्वर्टेड एनीथिंग, डायरेक्टली हमने डिवाइड किया और डायरेक्टली यू गॉट द आंसर। तो देखिए, अगर आप वैसे क्वेश्चन को देखोगे तो काफ़ी आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट व्हेन यू विल गो बाय द ट्रिक्स, तो इट डज़ नॉट टेक एनी टाइम। ये देखिए, ये भी हमने आपको एक्स्ट्रा बताया इस क्वेश्चन में। अगर आपको स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी जाए, सो यू हैव टू कैलकुलेट बाय दिस, बट यहाँ पे सिर्फ आपका ये क्वेश्चन इतना ही था, डी यू, और इन दोनों को सिर्फ ऐड कर देना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अ टिकट कलेक्टर सिटिंग इन अ कोच ऑफ द ट्रेन विच इज ट्रेवलिंग एट a speed of 67 kilometer per hour notices that goods train takes 11 seconds to travel in the opposite direction। तो देखिए, for opposite direction I have already told you and I have taken some classes also for same direction and opposite directions। you can see for opposite directions you have to calculate the speed, because देखिए, अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन से आ रहे हो और आपका फ्रेंड है जो यहाँ पे देखिए, आप नॉर्थ डायरेक्शन से नीचे साउथ की तरफ आ रहे हो और आपका फ्रेंड है साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रहे हो, तो जो आपकी स्पीड है वो ऐड हो जाएगी दोनों की। वाई? क्योंकि देखिए, दोनों उसी डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, तो इसका मतलब जो आपका टाइम है वो काफ़ी कम लगेगा। दैट मीन्स आपकी स्पीड क्या है, ऐड हो जाएगी। और अगर मैं सेम केस यहाँ पे बोलूँगी, आप वेस्ट साइड जा रहे हो और आपके फ्रेंड ईस्ट साइड जा रहे हैं, दैट मीन्स देखिए, जो आपका टाइम है वो क्या है, और ज़्यादा लगेगा और आप मिलोगे भी नहीं। और यहाँ पे देखिए, जो उनकी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इनकी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। गेट इट? तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन है दैट मीन्स एक्स प्लस वाई, इसका मतलब क्या है कि द स्पीड विल ऐड। यहाँ पे देखिए, द लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन इज 293.5 मीटर, द स्पीड ऑफ ट्रेन इन विच टिकट कलेक्टर इज सिटिंग। ओके, तो देखिए, इन दीज क्वेश्चंस आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। so what you have to do is you have to just follow your formula, the basic formula, the base of the and your distance, speed and time. So what is the basic formula? I mean, one of the basiest formula. What is that? Distance is equals to speed into time. I guess everyone knows about this. Distance is equals to speed into time. So there you can see, time we have given your 11 seconds, and your distance, distance is given। distance means जो उसको cover किया है, that means जो overtake किया है, that is the only distance। distance is your 293.5 meter। so you can see now, as you can see, this is the time. Time is equals to, what is time? Time is equals to distance upon speed. When we will elaborate, the formula of distance is equals to speed into time, so time is equals to distance upon speed. So you can see, this is the distance and this is your speed. So what you can do from there, time is your 11 seconds, getting, and time is equals to distance. Distance, what is distance? 293.5. what is it? 293.5, getting। नाउ लुक ओवर हेयर, ये जो आपका 11 है दैट इज इन सेकेंड्स, एंड जो आपका ये डिस्टेंस है दैट इज इन मीटर। दैट मीन्स ये आपका मीटर और सेकेंड्स में है। बट नाउ फोकस हेयर केयरफुली, जो आपकी स्पीड है वो 67 किलोमीटर पर आवर है, दैट मीन्स ये आपकी किलोमीटर पर आवर में है। यू हैव टू चेंज इट इन मीटर पर सेकेंड। तो वट यू विल डू फॉर द सेम, 67 into 5 by 18, what you have to do, 67 into 5 upon 18, getting, ये हो गया आपका 5 upon 18। this is your speed of train। now what is the speed of other train? So we do not know the speed of ticket collector's train in which he is sitting, so we will simply write it x। so now focus one more thing there, this is your x. X is the speed of the train in which the ticket collector is sitting, but this x will be in meter per second now. This will not be in kilometer per hour. Why? Because this is in meter, this is in second, and this is in kilometer per hour, but by multiplying by 5 upon 18, it has converted to meter per second. That means the answer of x, x means your speed, that will be meter per second. So when you will solve these things, solve it and tell me the answer. So I'll tell you the answer directly, you can also solve it। so you can see this, the value of x, I will tell you the value of x directly। so the value of x will be, after solving this, the value of x will be 8.08, 8.08, this is meter per second, getting, this is meter per second। so but in the answer it is being already asked that you have to calculate it in kilometer per hour, because the speed of one is in kilometer per hour। so what you have to do is you have to again multiply by 18 by 5। why 18 by 5? Because for converting your kilometer per hour into meter per second you have to multiply by 5 by 18। so तब आप रिवर्स करोगे तो आप 18 by 5 से इसे मल्टीप्लाई करोगे। so after solving that you will get your answer as 29.05 will be your answer।
So you can get it, you can solve it, and you have to tell in the comment section if you are seriously preparing for your exams. Because देखिए हम भी अपना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए हेल्प के लिए आगे आए हैं. So we also want feedback from you guys because we got a lot of comments after your Infosys exam that is being conducted on the 20th Feb. So we got a good comments and good response from the students. That is why we thought that we should help some more students for us. Okay. So you can see now Ram got a question in this math test that if LCM of two numbers is 369, okay, that means you can denote it by L is equals to 369 and your H means your HCF is 27 and one number is 9. Then find the other number. So this is the basiest thing. I guess you all knows about it. I mean, how you have to solve these questions. So you can see Ram got a question in his maths test. So if LCM is of two numbers is this and HCF is this, so I guess you all knows about the formula. LCM into HCF. Let me write HCF as H. So LCM into HCF is equals to product of two numbers. So what is that product of two numbers? One number is your 9 and let us suppose second number is your X. So you can see this is your L, this is your H. L is your 369, 3 6 9. This is your LCM. And what is the HCF? HCF is your 27. So this is 27 is equals to 9x. So ये हो जाएगा आपका x और 9 हो जाएगा अपॉन 9. So what you have to do, 9 आप 3 से एलिमिनेट कीजिए इसे, 9 3 27. So this is 9 3 27. Okay, 2 6 3 18 and 2 20 0 2 3 3 9 and 2 11. So the answer is 1107. This is the other number. So you can get it from the options. Okay, this is the third option. 1107 is the correct answer. So you can see this is a good question. I guess if you knows about the formula LCM into HCF is equals to product of two numbers, I guess this is a very basic question. Now coming to the other question, you can see this is a question of partnership also, or you can call it a ratio or proportion also. So see the question, ratio, Ritesh and Jitesh along have 1500 rupees. Okay, they both have 1500 rupees. If 6 by 10 is Ritesh quantity is educate, or you can call it equal to 2 by 5 of Jitesh amount. Okay, that means now let me write according to the question. That means 6 by 10 of Ritesh, 6 by 10 of Ritesh is equals to 2 by 5 of Jitesh. This is 2, this is 5, 2 by 5 of Jitesh, this is J. Getting? Now see, this is your 5, 5, 2, 10, and this is your 2, 2, 3. Getting? So the ratio of Ritesh or Jitesh is, so Ritesh upon Jitesh will be equal to what it is? This will be equals to R upon J is equals to 2 upon 3. Now you can see the total sum is 1500. That means this is the ratio of Jitesh and Ritesh. So Ritesh can be amount to 2 and Jitesh can be amount to 3. So that means you can take it x as a common factor. So 2x plus 3x is equals to 1500. So x will be your 500. Getting? X आपका directly 500 हो जाएगा. And if x is 500, so what you have to find it there? The proportion. What proportion quantity will have Ritesh have? So you have to tell about the Ritesh quantity. So this is 500. Okay, this is 3 to 5, 5 3 15. Okay, x will be 300. Sorry, x will be 300. When you will calculate 3 and 2 5, 5x is equals to 1500. So this is 300. So x is 300. You have to find the Ritesh amount. So the Ritesh amount will be your 600. Getting? So this will be your answer. Or you can think directly if you do not have much time, so you can guess it also. Like this is 1500 and they have the ratio something 2 or 3 or 2 or 5. So that means जो भी आपका अमाउंट होगा दोनों का वो हंड्रेड्स की फॉर्म में होगा, लाइक 600 900 10 मीन 1000 800 लाइक दिस. तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर 600 भी डायरेक्टली यू कैन गेस इट. गेटिंग? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एवरेज, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन without wasting the time, you can see Virat Kohli's average run is in 10 innings is 20 in 2020 is 32. That means let me write Virat Kohli's average in 10 innings in 2020 is your 32. That means in 10 innings, that means Virat's total run is 320. Getting? Mean the average is 10, or average is
32 and your innings are 10. That means Virat's total run in 10 innings is 320 runs. Getting? How many runs must he take in his next inning so as to increase his average score by 4 runs? So this is simple. I mean, this is the Virat 320. Now after that, how much Virat should score? That means the scoring of Virat will be X. I mean, he will score X runs, and the average will be, what will be the average? This is the total innings are 10, but the next inning में, that means the inning will be 11 now. और अगर आपकी 11 innings हैं and you have to find the average, मीन average is given, you have to find the run, मैक्सिमम जो आपके रन होंगे वो 11th इनिंग में कितने रन स्कोर करेंगे विराट। तो यहाँ पे देखिए जो उनकी एवरेज थी, एवरेज हैज़ बीन इंक्रीज बाय 4, तो अगर आपकी एवरेज 4 इंक्रीज हो गई है एंड इनिशियली उनकी एवरेज 32 थी, तो 32 एंड 2 36, दैट मीन्स विराट की एवरेज 36 हो गई है। यहाँ पे आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 11 से, तो यू विल गेट इट 11 66 एंड 33 60 90, तो ये डायरेक्टली आपका 396 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो 396, और आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 396 माइनस 320, आई गेस दैट विल बी 76। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 76 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए एक ईजी क्वेश्चन है, ओनली व्हाट यू हैव टू डू इज आपको सिर्फ फोकस करना है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक अनाउंसमेंट है जो हम आपको भी बताएंगे इन द लास्ट ऑफ द वीडियो, बट बिफोर दैट पहले आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, ये है आपका तारा सतारिया इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी एट सी आई। ओके, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। नाउ सी इट अमाउंटेड टू रुपीज 24, ओके 2420 इन your 2 years and your 2662 in 3 years. What you have to calculate? You have to find the rate of percent per annum. So for that you can do two things. What are those things? पहले आप क्या कर सकते हो, दिस इज इन 3 ईयर, दिस इज इन 2 ईयर, दैट मीन्स ये आपका कंजिक्यूटिव है। गेटिंग? कंजिक्यूटिव है तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, मीन्स टी, बिकॉज आपको कुछ नहीं निकालना, यू हैव टू ओनली फाइंड द परसेंटेज। सो परसेंटेज के केस में आपको ना ही प्रिंसिपल चाहिए ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, आपको डायरेक्टली रेट चाहिए। तो देखिए ये हो गया आपका T2 अपॉन T1, तो जो आपका T2 है वो कितना आपका, मीन T2 मीन्स सेकेंड टाइम में कितना इंक्रीज हुआ था आपका, वो हुआ था 2 6 6 एंड 2 2662, एंड जो आपका 2 रुपीज़ एंड 2420 एंड 2 ईयर्स, तो ये देखिए ये कितना आपका 2420। आप इनको डायरेक्टली यहाँ से तब एलिमिनेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आप तब यहाँ से कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा आपका 2 से एलिमिनेट करोगे 1 3 एंड योर 3 एंड 1, और तो आप इसको एलिमिनेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 2 1 एंड देन योर 0। नाउ यू कैन सी दिस इज योर 1210 एंड दिस इज योर 1331। तो गाइस सी, अगर आपने थोड़ी बहुत भी कंपाउंड इंटरेस्ट या क्यूब्स और आपने जो आपके स्क्वेयर्स हैं वो अगर थोड़े और बहुत भी रीड आउट किए होंगे, तो डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हो ये आपका 11 का क्यूब है और ये आपका 11 का स्क्वायर है। दैट मीन्स अगर वो जो सम है, वो जो उनका इंटरेस्ट है, वो अगर सेकेंड ईयर में 11 स्क्वायर होता है और थर्ड ईयर में 11 क्यूब होता है, दैट मीन्स आपका जो सम है वो क्या होगा 1 प्लस, यू कैन सी नाउ, ये आपका फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर अपॉन 100। तो यहाँ पे देखिए जब ये आपका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 11 सपोज करें तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन या 1 अपॉन 10 प्लस 100 करेंगे। कैसे करेंगे देखिए एक बार फिर से देखिए, 1 प्लस आर अगर हम लेट सपोज देखिए गैस कर रहे हैं, अगर हम 10 समझे आर को, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 अपॉन 100 हो जाएगा। दिस इज ज़ीरो, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज योर ज़ीरो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस 10 अपॉन 100। अब आप यहाँ पे देखिए जीरो से आप जीरो एलिमिनेट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 1 11 अपॉन 10, तो दिस इज 11 अपॉन 10। अब देखिए यही पॉइंट हम यहाँ पे आपको मेंशन कर रहे हैं कि ये देखिए ये है जो आपका ये है, ये देखिए ये आपका इंटरेस्ट था, और यहाँ पे देखिए 11 क्यूब और 11 स्क्वायर, दैट मीन्स जो वो आपका सम है वो 11 के मल्टीपल्स में होगा, और अगर आपको वो 11 स्क्वायर है, दैट मीन्स अगर आप हम 11 ले रहे हैं, दैट मीन्स जो आपका आर है वो 10 होगा। क्यों? क्योंकि जो अगर आर आपका जो हमारा टोटल है वो हमारा 11 आया है यहाँ पे, दैट मीन्स हमारा रेट 10 होता है उस केस में। गेट इट? ये हो गया आपका एक मेथड। अगर आपको यहाँ से भी समझ नहीं आए कोई इशू नहीं है। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेप। अब देखिए यहाँ से आप एक बार और एलिमिनेट कर सकते हो इन्हें। कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? ये आपका 11 स्क्वायर इंटू 10 होता है,
ये आपका 11 क्यूब होता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका 11 अपॉन 10 हो जाएगा डायरेक्टली। देखिए कैसे हो जाएगा, समझिए फिर से। ये कितना है आपका 120, 1210 है, तो जीरो को अलग रखिए। ये कितना है आपका 11, ये आपका 11 स्क्वायर है। तो इसे हम 11 स्क्वायर इंटू 10 यूज़ कर सकते हैं, गेटिंग 11 स्क्वायर इंटू 10। और जो आपका 1331 है न्यूमरेटर में, ये आपका 11 क्यूब होता है। तो 11 स्क्वायर से आप 11 क्यूब एलिमिनेट कर सकते हो और सिर्फ आपका 11 की पावर 1 रिमेनिंग होगा यहाँ पे। तो देखिए ये आपका 11/10 ही हो गया है। और देखिए सिंपल, फिर से देखिए, ये आपका 11/10 ही था। और ये कब आया था आपका, तब आपका रेट 10 था। और वैसे भी देखिए, अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आपका 11th ऑप्शन में भी नहीं है। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपका जो आपका डायरेक्ट आंसर है वो आपका 10 ऑप्शन में है। गेटिंग? ये आई गेस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में, बिकॉज आपके जो विप्रो, ये TCS, इन्फोसिस, इन सारे एग्जाम्स में इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1+r/100 आपको डायरेक्ट देखना था और यू कैन कैलकुलेट इट। हमने यहाँ पे इसलिए स्टॉप किया था कि आपको समझ में आ गया होगा, बट आई थॉट कि थोड़ा सा और एलिब्रेट कर देते हैं। एलेबोरेट करके हमने आपको दिखाया कि ये 11/10 ही होता है। और 11/10 हमने 1+r/100 से ऑलरेडी आपको कैलकुलेट किया था कि 11/10 कब बनता है आपका, जब आपका रेट 10% होता है, तभी 11/10 का रेशियो होता है। गेटिंग? आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, लॉन्ग मेथड जो होता है आपका CI फॉर 3 ईयर्स, CI फॉर 2 ईयर्स, उन्हें डिवाइड कीजिए। काफ़ी लंबा मेथड है लेकिन कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज देयर यू ओनली हैव टू फाइंड आउट द परसेंट पर एनम। गेटिंग? तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, दो गोल्ड चेन आपके पास 64 एंड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ सी व्हाट मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीसेस कैन बी कट इक्वली, कितना कट करेंगे फ्रॉम द गोल्ड चेन। देखिए इन क्वेश्चंस में व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू कट इक्वली। देखिए कट इक्वली कब होगा, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ 2, 4 एंड 6। ये आपके 3 ग्राम के या 3 सेंटीमीटर के 3 रॉड्स हैं आपके पास। अब इफ आई आस्क यू कि मैक्सिमम बताइए कि जो तीनों पीसेस इक्वल अमाउंट में कट हो जाए, तो आप बोलोगे सर डायरेक्टली दो दो के कट कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही है। गेटिंग? आप 1 1 बोलोगे, 1 1 के 2 पीस यहाँ निकाल दीजिए, 1 1 के 4 पीस यहाँ, 1 1 के 6 पीस यहाँ, लेकिन फिर वो मैक्सिमम नहीं रहेगा ना। गेटिंग? आपको मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ पीसेस। तो मैक्सिमम क्या होगी आपकी, यहाँ पे दो ही होगी। अब यहाँ पे देखिए सिंपल, आपका ये 64 था और आपका ये 80 था। तो वट यू हैव टू फाइंड देयर, आपको सिंपल HCF निकालना है इनका, कि इनका क्या HCF होगा। तो देखिए आपको सिंपल यहाँ पे HCF निकालना था। तो यहाँ पे देखिए, मैं और भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं आपके, कुछ मिल्क के क्वेश्चंस भी होते हैं, आपको मैक्सिमम निकालना होता है। तो जहाँ पर भी आपको मैक्सिमम निकालना हो, वट यू हैव टू डू देयर, यू हैव टू जस्ट टेक द HCF ऑफ बोथ द नंबर्स डिफरेंटली। आपको ये तो पता ही होगा कि HCF आपका सेपरेटली निकाला जाता है। तो ये देखिए 80 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे हो गया 64। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सिंपल दो से आप एलसीएम निकालिए, यहाँ पे दो से निकालिए। सिंपल जो भी आपका लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर आए वो आपको लेके यहाँ पे आपको हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। इससे भूल जाइए क्वेश्चन को, जो भी आपका आंसर था। मैं नेक्स्ट टाइम से ये आंसर्स, आई विल रिमूव दीज आंसर्स, क्योंकि आप ये नहीं देखते होंगे डायरेक्टली, आई नो। तो यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्टली सिंपल HCF निकालना था, बिकॉज देखिए मैक्सिमम तो हम सॉल्व भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए आपको सिंपल इनका HCF निकालना था। और देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर, यहाँ इफ दे हैव आस्क्ड अबाउट द मैक्सिमम, यू हैव टू फाइंड द HCF। इफ दे हैव आस्क्ड अबाउट द LCM, you have to find, if it is mentioned in the question that minimum length, so you have to find the LCM। गेट इट? तो HCF और LCM के बीच में छोटा सा डिफरेंस है, आई गेस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। और देखिए ये हमने जो सीरीज़ आपके लिए निकाली है फॉर विप्रो स्टूडेंट्स और फॉर एसेंचर, मीन आपका एसेंचर भी होने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट योर एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, तो इनमें क्या होता है आपका। तो स्टूडेंट्स, आई गॉट सम कमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि उनका एसेंशियल का, दे आर आल्सो हैविंग देयर एसेंशियल एग्जाम आल्सो। सो फॉर दैट आल्सो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम दीज वीडियोस, जो भी अभी हमने आपके लिए एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस डाले हैं, सो दैट विल बी बेस्ट एंड बेस्ट एक्सरसाइज फॉर यू गाइज। यू कैन सपोज इट एज अ सैम्पल पेपर फॉर यू फॉर एप्टीट्यूड क्वेश्चन। एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव कवर्ड अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो this is your homework. I'll not solve this question. You have to solve this question. When you will get the answer, so tell us the your answer, or you have to tell with the timing of the video. Mean for example आपकी 20 minutes की वीडियो है, so 18 minutes something तब भी ये आपके पास आएगा। You have to tell us the answer. Okay, remove this question option. ये देखिए आपको रॉन्ग भी हो सकता है आप ये सपोज कर सकते हो कि दिस कैन बी योर आंसर कैन बी रॉन्ग।
तो डू नॉट कॉपी द आंसर कि आपका सिर्फ 18 ही आंसर होगा, कोई भी आंसर हो सकता है। आई डू नॉट गिव यू द गारंटी। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन करके हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जो अनाउंसमेंट की हम बात कर रहे थे, आपका अनाउंसमेंट ये है कि हम एक असेंचर फॉर पर्टिकुलर असेंचर, सॉरी नॉट असेंचर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर विप्रो एग्जाम्स। तो हम विप्रो के बारे में बात कर रहे हैं। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 23 को, या जब भी आपका एग्ज़ाम है, इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड असिस्टेंस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं, स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स का जो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। आपको उसमें ज्वाइन करके हमें पर्सनली डीएम करना होगा। वो आपके थोड़ी सी असिस्टेंस के लिए, और जो भी फर्दर डिटेल्स होंगी वी विल डिस्कस लेटर। तो आप पर्सनल डीएम करके वो सारी चीज़ें पूछ सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उसके लिए हम देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू प्लानिंग ऑफ योर वर्बल और योर रीजनिंग। तो देखते हैं कि रीजनिंग या वर्बल कौन सा हम लेंगे। लेकिन ये आपके बेस्ट क्वेश्चंस थे जो भी हमने कराए हैं, इनसे ऊपर कुछ नहीं आने वाला अगर ऐसे टॉपिक्स हैं। और देखिए, हर किसी टॉपिक में हमने आपको ऐसे क्वेश्चंस कवर किए हैं जिससे आपको वो हेल्प हो सके, प्लस हेल्प के साथ साथ कि उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा हमने कवर किया है। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई सजेशंस हैं, यू आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ, ये हमारी रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, आप लोगों की ऐसे ही और हेल्प कर सकें। प्लस हमारी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉबलेट्स की जो फैमिली है वो थोड़ी ग्रो करने में भी आप हमारी हेल्प कीजिए। तो अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप इस चैनल को सर्कुलेट कीजिए, हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सकें और हमें हमारी मोटिवेशन इम्प्रूव हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।